So let's start with the new chapter from Unit 4. So we have already completed up till Unit 3. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीडीए का कॉन्सेप्ट करा था, ठीक है, वो आपका यूनिट 3 का पार्ट था. So today we will start with the Unit 4 and the first chapter under Unit 4 is Turing machine, TM, a model of computation, right? So let's begin with the topic. So outlines under this Turing machine chapter, we will be covering the first topic is model of Turing machine. The next one is introduction of Turing machine. Under this introduction, we will be covering technical definition of Turing machine and simple definition of Turing machine. Then we have uses of Turing machine. Then we have different categories of Turing machine, that is variants of Turing machine. Then last but not the least, we have representation of Turing machine, how a Turing machine will be represented, right? So the first topic is model of TM. So first of all, the Turing machine was designed by Alan Turing. This is the person who invented the Turing machine, Alan Turing, in the year 1936, right? So Turing machine is a simple mathematical model of a general purpose computer. Turing machine is capable of performing any calculations which can be performed by any computing machine. So you can see the diagram. So here the tape is of infinite length, right? The tape is of infinite length. So here we don't have any sort of end markers as in case of DFA, right? So if you remember, in case of DFA, we have left end marker and right end markers, but in this, we don't have any end markers, right? And the tape is of infinite length. In place of end markers, we have a special symbols, right? I will let you know about those special symbols in the later section. So first of all, your tape is divided into infinite cells and each cell consists of only single input symbol. So here B is a input symbol, X1 is a input symbol, X2 is a input symbol and so on up to X2. ये आपके सभी क्या है, input symbol है. Under input symbol we have a read write head. So here how the Turing machine is different from the previous machines, here we are going to do read as well as write. Am I clear? We are going to perform reading as well as writing. The machines which we have studied earlier, we are doing only reading operation, not writing. And FC is a, and your read write head is connected to finite control. Finite control will let you know about the information of states. Am I clear about this model? ये डायग्राम क्लियर हो गई सबको? बेटा ये डायग्राम क्लियर हो गई, दोबारा रिपीट करूं? हेलो, am I audible to all of you? Yes, sir. ये डायग्राम क्लियर हो गई या डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी इंटरनेट की? Disconnectivity हो सर रिपीट कर दो. चलो रिपीट कर देता हूं. ये स्लाइड के अंदर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ट्यूरिंग मशीन था उसको एक बंदे ने इन्वेंट करा था जिसका नाम एलन ट्यूरिंग था.
in the year 1936, right? So Turing machine is a simple mathematical model of a general purpose computer. It is capable of performing any calculations which can be performed by any computing machines, right? So ये जो आपको डायग्राम दिख रही है इसके अंदर मेन 3 चीजें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेप ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है. जो आपकी टेप है उसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है और टेप इज डिवाइडेड इनटू एन नंबर ऑफ सेल्स. हर एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट रहेगी. जैसे आप लोग देख सकते हो बी, एक सेल के अंदर कैपिटल बी है, एक के अंदर x1 है, x2 एंड सो ऑन अप टू x2 एंड b. ये सारे आपके क्या है, इनपुट्स हैं जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर रहेंगे. देन इट इज फर्दर कनेक्टेड टू रीड राइट हेड. सो जो ट्यूरिंग मशीन है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मशीन्स, इसके अंदर रीडिंग भी होती है और इसके अंदर राइटिंग भी होती है. जबकि हमने जितनी भी प्रीवियस मशीन्स पढ़ी हैं, जो पीडीए था, विले था, मुरे था, डीएफए था, उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते थे, राइटिंग नहीं होती थी. लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर हम लोग राइटिंग करेंगे, एक सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ रिप्लेस करेंगे, उसको बोला जाता है राइटिंग. Your further read write head is further connected to FC, finite control. Finite control क्या होता है? It will let you know about the information of states, कि आपकी पहले कौन सी स्टेट थी और बाद में कौन सी स्टेट है. क्लियर है? अभी डायग्राम क्लियर हो गई? Yes, sir. So next we have introduction of Turing machine. So the Turing machine is a finite state automata connected to a read write head. ठीक है, जो ट्यूरिंग मशीन होती है, इट इज योर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा विच इज कनेक्टेड टू रीड स्लैश राइट हेड. सो इट हैज वन टेप विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेल्स. तो हमने अभी देखा है एक डायग्राम के थ्रू कि आपके पास एक इनफाइनाइट टेप थी जो कि एन नंबर ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइडेड थी, राइट. ईच सेल कैन स्टोर वन सिंबल. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हर सेल के अंदर, ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये वाला एक आपका सेल रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर खाली एक ही सिंबल है. ये एक सेल है, एक ही सिंबल है. फर्दर एक सेल है, एक ही सिंबल है. So the input to and from the finite state automata are affected by read write head. जो आपकी इनपुट रहेगी एंड जो आपकी आउटपुट रहेगी from this machine, they are affected by read write head which can examine one cell at a time. ठीक है, तो या तो आप लेफ्ट मूव करोगे या तो आप राइट मूव करोगे, उसके अकॉर्डिंग बेटा आपकी सिंबल चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेट चेंज होगी. तो अभी देखते हैं कैसे चेंज होती है. सो इन वन मूव, अगर हम एक मूव करेंगे, द मशीन एग्जामिन्स द प्रेजेंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड. तो डायग्राम को देखिए, अभी मैंने यहाँ पे आपकी मशीन यहाँ पे स्टिल है, तो अब इस रीड राइट हेड के अंदर जो करंट सिंबल है वो क्या है, x2. ठीक है, सो x2 रिप्रेजेंट्स योर प्रेजेंट सिंबल. तो यहाँ पे आपका है the symbol under the read write head on the tape and the present state of the automata to determine number 1. तो पहली चीज क्या आएगी, जब ये मशीन आगे की तरफ जाएगी, जब ये रीड हेड जो है, या तो वो पीछे आएगा, लेफ्ट मूव कर सकता है, या वो राइट मूव कर सकता है. अब जब वो राइट मूव करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, एक नया सिंबल आएगा रीड राइट हेड के अंदर, प्लस हमें एक मोशन बताएगा वो कि उसने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है. प्लस तीसरी बात कि एफसी आपको बताएगा कि प्रेजेंट स्टेट कौन सी आ रही है. जब ये वाली मशीन आपकी आगे जाएगी, जब यहाँ पे आएगी, तो ऑब्वियसली आपकी स्टेट भी चेंज करेगी. ठीक है, तो पहली बात है आपकी नया सिंबल आया, टू बी रिटन ऑन द टेप इन द करंट सेल अंडर द रीड राइट हेड. दूसरी बात, नई स्टेट आएगी. तीसरी बात, मोशन आएगा. आपने लेफ्ट जाना था कि राइट जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपका रीड राइट हेड मूव करेगा. और चौथी बात, वेदर टू हॉल्ट और नोट. अगर तो आपका वो लास्ट सिंबल होगा इनपुट टेप में, अगर वो लास्ट सिंबल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ट करना पड़ेगा. अगर वो लास्ट सिंबल नहीं है तो आप लोग आगे या पीछे अगेन चलते रहोगे, डिपेंडिंग अपॉन दी मूव्स. ये बेटा समझ आ गया?
ये जो 4 चीजें लिखी हुई हैं इनके बारे में पता चल गया आपको? Yes, sir. क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे रिप्रेजेंटेशन की बात समझ में नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो डू क्लियर योर डाउट्स और लेट मी नो सो दैट आई कैन रिपीट। सर थर्ड पॉइंट से एक बार वापस रिपीट कर देना। चलिए रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये मेरे पास टेप के अंदर x2 है। x2 आपका क्या है, करंट सिंबल है जो कि रीड राइट हेड के नीचे है, ठीक है। और उसके नीचे है फाइनाइट कंट्रोल जिसके अंदर आपकी स्टेट है, करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये जो रीड राइट हेड है इसने मूव करना है, या तो लेफ्ट मूव करेगा या वो राइट की तरफ मूव करेगा। अगर तो वो राइट की तरफ मूव करेगा तो आपका मोशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक चीज आ गई। दूसरी चीज क्या आई, जब वो राइट की तरफ मूव करेगा तो आपका नया सिंबल आ जाएगा उसके अंदर, जो भी सिंबल यहाँ पे रिटर्न होगा। लेट सपोज इट्स x3, ठीक है। तो x3 गोना बी अ न्यू सिंबल। दूसरी बात, तीसरी बात, जब वो आगे गया तो आपकी स्टेट भी तो चेंज होगी। लेट सपोज वो पहले Q2 के अंदर था, अब वो आगे गया, अब आपके पास आ गई है Q3 स्टेट आ गई है, ठीक है। और चौथी बात, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमारे पास कुछ और सिंबल्स भी पेंडिंग है, तो अभी हमारी स्टेट हॉल्ट नहीं करेगी, अभी हमारी मशीन हॉल्ट नहीं करेगी। जब वो यहाँ पे होगा, लास्ट सिंबल के ऊपर होगा, बी के ऊपर, तब आपकी मशीन हॉल्ट कर जाएगी। तो ये चीजें वही हैं। तो पहली बात क्या है कि इन वन मूव द मशीन एग्जामिन्स, वो बोलता है कि एक मूव के अंदर जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है वो क्या क्या एग्जामिन करती है। द मशीन एग्जामिन्स द, पहले ये उसकी प्रेजेंट बात बता रहा है कि इट एग्जामिन्स द प्रेजेंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड ऑन द टेप एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑटोमेटा टू डिटरमाइन। उसने फाइंड आउट करनी है नई चीजें क्या क्या। नंबर 1 वो क्या फाइंड आउट करेगा, एक नया सिंबल फाइंड आउट करेगा। दूसरी बात, एक नई स्टेट फाइंड आउट करेगा। तीसरी बात, a motion of read write head along the tape, that is either the head moves to the left or it moves to the right। और चौथी बात है whether to halt or not। ये मशीन आपकी कब हॉल्ट करेगी, जब सारी की सारी इनपुट की प्रोसेसिंग हो जाएगी, जब आपके पास कुछ भी नहीं है प्रोसेस करने के लिए अपनी इनपुट के अंदर, then your machine is gonna be a in halt state, otherwise it will continue, right? So this is the introduction of Turing machine. Next we have a technical definition of Turing machine। बेटा ये बात ना बड़े ध्यान से पेपर में पढ़ा कीजिए। अगर आपको पेपर के अंदर बोला गया है राइट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, तो आपने वहां पे टेक्निकल डेफिनेशन ही लिखनी है, नॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखनी है। बच्चे ने बहुत ज्यादा गलती करी हुई है जो आपने फर्स्ट सेशनल अटेम्प्ट करा है। चलिए, जैसे आपका पीडीए जो था वो 7 टपल्स था, सिमिलरली हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है वो भी 7 टपल्स है। वो टपल्स कौन कौन से हैं, कैपिटल Q, देन वी हैव सिग्मा, देन वी हैव टो, देन वी हैव डेल्टा, Q नोट, B एंड F। यहाँ पे बेटा हमारे पास Z नोट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि हमने पीडीए के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास Z नोट की जगह पे B आ गया है। B stands for blank symbol। So let's gonna understand this symbols one by one। The first symbol, that is capital Q। Capital Q is a finite non-empty set of states। ठीक है, ये हमने शुरू से पढ़ते आए हैं। कैपिटल Q के अंदर क्या है, आपकी सारी की सारी स्टेट्स आ जाएंगी। इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल Q नोट, Q1, Q2, Q3 and so on up to Qn। Then we have sigma। Sigma is a non-empty set of input symbols and it is a subset of tau। ठीक है, so symbols which are part of input alphabet उसको बोला जाता है सिग्मा। देन वी हैव टो। टो क्या होते हैं, द टेप सिंबल्स, सिंबल्स विच कैन बी रिटन ऑन द टेप, जो कि आपकी टेप के अंदर आ जाएंगे, उनको हम टो बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव बी। बी इज अ ब्लैंक सिंबल एंड इट बिलोंग्स टू
toe. B is a blank symbol and it belongs to toe. Then you have Q note. Q note is the initial state, capital F is the final state. Then we have a delta. Delta क्या था आपका? ट्रांजिशन फंक्शन था जो कि आपको चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बताता था. यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन क्या है? Q into tau goes to Q into tau into L, R. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो Q है वो आपका क्या है? करंट स्टेट है. ये वो जो टो है ये आपका है प्रेजेंट टेप अल्फाबेट पॉइंटेड बाय हेड पॉइंटर. ठीक है, जब इसने आगे जाना है, जब आपकी टेप आगे जाएगी तो वो किसके अंदर जाएगी? इट विल मूव टू दी न्यू स्टेट. तो ये वाला जो क्यू है ये आपको बताता है नई स्टेट के बारे में, ये आपको बताता है नए सिंबल के बारे में. ठीक है, और ये है आपका रीड राइट हेड, मतलब कि आप लेफ्ट भी जा सकते हो या फिर राइट भी जा सकते हो. तो ये टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? बेटा रिप्लाई विद यस नो. टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर है? यस सर. तो यहाँ पे मैंने एक हाइलाइटर दिया हुआ है, यू कैन सी इट. मैंने टप्पल्स आपको बताए हुए हैं कि जो हमारा डीएफए और एनडीएफए था वो 5 टप्पल्स था. मीले और मूरे मशीन जो थी वो आपकी 6 टप्पल्स थी. ग्रामर जो थी वो आपकी 4 टप्पल्स थी. पीडीए जो था आपका 7 टप्पल्स था एंड 2 पीडीए जो आपका था वो 6 टप्पल्स था. ये याद रखना, ये हाइलाइटर बनाया हुआ है सो दैट कि आप लोग पिछली चीज को रिमेंबर कर सको. ठीक है, और ट्यूरिंग मशीन और पीडीए जो है वो दोनों के दोनों 7 टप्पल्स हैं. ठीक है, ट्यूरिंग मशीन एंड पीडीए जो है वो 7 टप्पल्स ईच हैं. लेट प्रोसीड्स टू नेक्स्ट टॉपिक. सो यूजेस ऑफ ट्यूरिंग मशीन. आपकी ट्यूरिंग मशीन जो है वो कैसे कैसे यूजफुल है? सो ट्यूरिंग मशीन आर यूजफुल इन सेवरल वेज. द फर्स्ट यूजेज इज इट एक्सेप्ट्स टाइप 0 लैंग्वेज. तो टाइप 0 लैंग्वेजेस कौन सी होती थी? याद है आपको? जो आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज थी. आपको याद होगा हमने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ी थी, उसके अंदर 4 तरह की लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी. एक थी टाइप 0, ठीक है, जिसका नाम था अनरिस्ट्रिक्टेड. एक थी टाइप 1 जिसका नाम था रिस्ट्रिक्टेड. एक थी टाइप 2, ठीक है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. एक था टाइप 3 रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है, तो ये जो है इट एक्सेप्ट्स टाइप 0 लैंग्वेज, मतलब कि आपकी जितनी भी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर थी, अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस थी, ये उसको एक्सेप्ट करती है. सेकंड इसका यूजेज है, इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग फंक्शंस. इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी कंप्यूटिंग फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशंस आ जाती हैं, ये वहां पे यूज करी जाती है ट्यूरिंग मशीन. थर्ड यूजेज इज it turns out to be a mathematical model for partial recursive functions. जहां पे आपका रिकर्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसको वहां पे भी यूज करा जाता है. फोर्थ यूजेज इज ट्यूरिंग मशीन इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ सर्टेन लैंग्वेजेस. ठीक है, वहां पे यूज करी जाती है. एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर माइनिंग स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स. कि आपकी जो प्रॉब्लम है जिसको आप लोग सोल्व कर रहे हो, उसने कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करी हुई है सिस्टम के अंदर, उसने कितना टाइम लिया है, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में कितना टाइम लग रहा है. ट्यूरिंग मशीन वहां पे भी यूज में आती है. ठीक है, सो दीज आर दी 4 uses of Turing machine. Next we have variants of Turing machine. So we have different 7 variants of Turing machine, or you can say that we have 7 different types of Turing machine. First type आ जाती है हमारे पास मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन. फिर आ जाता है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन. देन वी हैव मल्टी डिमेंशनल ट्यूरिंग मशीन. देन वी हैव टू वे इनफाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन. Then we have non-deterministic Turing machine. Then we have stay option Turing machine.
Last but not the least, we have Turing machine as a enumerator, right? So before going to further topics, let's solve one poll. So I am going to reflect one poll among you people. Try to read out the questions very carefully and then answer them. पोल विजिबल हो गई सबको? यस सर। चलो आंसर कीजिए फटाफट। बेटा क्वेश्चंस बहुत आसान है, बड़े ध्यान से इनको रीड आउट कीजिए और विद इन 3 मिनट्स, 3 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके अंदर अंदर आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकेंड्स, हरी आप। सो थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ट्यूरिंग मशीन वाज डिजाइन्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1936। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन थी। 97% स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो करेक्ट है। देन वी हैव विच मशीन परफॉर्म्स रीड एज वेल एज राइट ऑपरेशन। तो हमने राइटिंग ऑपरेशन की बात ही आज करी है, इससे पहले मैंने आपको बताया ही नहीं था कि कोई और मशीन भी राइटिंग करती हैं। तो कुछ बच्चों ने गलत आंसर करा है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टीएम, ट्यूरिंग मशीन। रिजल्ट शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर था एलन ट्यूरिंग इन 1936 और दूसरे का जो राइट आंसर था वो ट्यूरिंग मशीन, टीएम। सो एक और पोल है, उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर कीजिए। सर सबमिट नहीं हो रहा, एरर आ रही है। हाँ जी, एरर आ रही है सर, एरर एरर क्यों सबमिट आ होने रहा है? में। क्यों एरर क्यों आ रहा है? अपना पता नहीं, इंटरनेट फेल टू सबमिट पोल, एरर 100000600। पोल 1 को तो बेटा मैंने बड़ी देर से बंद कर दिया है, वो पोल 2 है ये। हाँ सर, पोल 2 के लिए सर, वो जो दो ये TMPDA 7 किस किस को एरर आ रही है? यहाँ पे तो मेरे पास काफी सारी सबमिशन हो चुकी हैं बच्चों की। 24 स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया आउट ऑफ 34। बेटा अपना इंटरनेट चेक कीजिए, जिसको एरर आ रही है ना। हो गया सर, हो गया। अनुज, so last 10 seconds, I'm going to end the poll. Hurry up. Thank you. So first question था इसके अंदर, आइडेंटिफाई द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था TM एंड PDA जो है वो आपके 7 टप्पल्स हैं। बाकी मीले मूरे मशीन के अंदर 5 टप्पल्स नहीं होते हैं, 6 टप्पल्स होते हैं। ग्रामर के अंदर 4 टप्पल्स होते हैं। DFA और NDFA के अंदर 5 टप्पल्स होते हैं। ठीक है, तो वो वाली ऑप्शन सारी गलत थी। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव है। तो रिजल्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, तो ये रिजल्ट देख सकते हो आप लोग। आपको मैंने लास्ट स्लाइड थी जो हमने अभी डिस्कस करा, देखो आपका कितना ध्यान है लेक्चर के ऊपर। स्पेशली मैंने आपके लिए हाइलाइटर बनाया था एंड उस हाइलाइटर से वाला क्वेश्चन डाला है, इवन दो आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। आगे चलते Yes, हैं। sir. नेक्स्ट टॉपिक है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान देना सारे। ठीक है, सो अगर आपको याद है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी PDA की वो कैसे होती थी, याद है किसी को? कोई नाम बताएगा मेरे को? PDA की रिप्रेजेंटेशन हम लोग कितने तरीकों से कर सकते थे? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? Sir, ID. कौन बोला? Sir, Manbeen here. वेरी गुड, Instantaneous description के साथ कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो जो हमारा PDA था उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ID को यूज करते थे। सिमिलरली जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए
दो और स्पेशल वेज हमने इन्वेंट करी हैं, एक का नाम है ट्रांजिशन डायग्राम और दूसरे का नाम है ट्रांजिशन टेबल। आईडी तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव 3 डिफरेंट वेज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, द सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन डायग्राम, and the third one is called transition table, right? So let's understand all the 3 terms one by one. तो पहले डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन बाय आईडी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये डायग्राम दिख रही है नीचे, सब लोग डायग्राम देख पा रहे हो? यस सर। तो सबसे पहली बात कि जो आपकी आईडी है, आईडी होती क्या है? आईडी इज बेसिकली इट इज अ स्ट्रिंग which is of the form of alpha beta gamma, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या है? एक स्ट्रिंग है जो कि लिखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा, वेयर बीटा इज अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ एम। बीटा क्या है आपकी? बीटा जो है इट विल रिप्रेजेंट्स यू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एम, हियर एम इज अ ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि आपका जो फाइनाइट कंट्रोल है उसके अंदर कौन सी स्टेट लिखी हुई है? Q3। तो यहाँ पे जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? Q3। क्लियर है सबको बीटा के बारे में? बीटा के बारे में क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है, अब जो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग है यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ बी टू एंड ऑफ बी, ठीक है, उसको हम स्प्लिट करेंगे अल्फा और गामा के बीच में, क्योंकि बीटा को तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि बीटा इज रिफ्लेक्टिंग योर प्रेजेंट स्टेट। नाउ अब हमारे पास क्या बचा है? एक बचा है अल्फा और दूसरा बचा है गामा। अब इन दोनों को समझते हैं। अब वो कहता है कि द फर्स्ट सिंबल ऑफ गामा इज द करंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड। गामा जो है वो करंट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो करंट सिंबल अंडर रीड राइट हेड है वो कौन सा है? A1 है, ठीक है। करंट सिंबल अंडर रीड राइट हेड कौन सा है? A1। मींस के यहां से लेकर यहां तक आपकी जो टेप है, जिसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर बांट लिया है, ठीक है। एक पार्ट का नाम है अल्फा और दूसरे पार्ट का नाम है गामा। मैं आपको गामा के बारे में बताने जा रहा हूं। गामा का वो बोल रहा है कि गामा हैज द फर्स्ट सिंबल ऑफ गामा इज द करंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड। तो यहाँ पे उसका फर्स्ट सिंबल क्या आ गया? A1 गामा के अंदर। एंड गामा हैज ऑल दी सब्सिक्वेंट सिंबल्स ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। उसके बाद A1 से शुरू करके उसके जितने भी सिंबल्स हैं B को छोड़ के, वो सारे के सारे किसका पार्ट है? आपके गामा का पार्ट है। तो गामा के अंदर 3 सिंबल्स आ जाएंगे बेटा, एक आएगा A1, एक आएगा A4 और एक आ जाएगा A2। यहां से आप देख सकते हो दिस इज योर करंट सिंबल एंड इट इज द राइट सीक्वेंस। इसके बाद राइट की तरफ जाना है। ये फर्स्ट सिंबल है गामा का, उसके बाद हमने राइट की तरफ जाना है। तो अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, A1, A4 एंड A2 ये किसके अंदर आ जाएगा? गामा के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गामा के अंदर 3 सिंबल्स आ गए, A1, A4 और A2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बीटा और गामा क्लियर हो गया सबको? रिस्पॉन्ड विद यस और नो। Yes, sir. वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अल्फा। अब अल्फा क्या कहता है? उसकी डेफिनेशन कहती है दी स्ट्रिंग अल्फा इज अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपकी पूरी स्ट्रिंग हमने 2 पार्ट्स में बांटी थी, एक था गामा और एक था अल्फा। गामा हम ले चुके हैं, अब अल्फा की बारी है। सो बोलता है द स्ट्रिंग अल्फा इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म्ड बाय ऑल द सिंबल्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। यहाँ पे ए आपका क्या है? ये वाला करंट सिंबल। तो इसके लेफ्ट के ऊपर कितने सिंबल्स हैं? ये वाले सारे। तो A4 से लेकर A2, ये वाला A4, A1, A2, A1, A2, A2 मींस ये वाले सारे सिंबल्स आपका किसका पार्ट बन गया? अल्फा का पार्ट। डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। डेफिनेशन कह रही है द स्ट्रिंग अल्फा इज द सब स्ट्रिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग
formed by all the symbols to the left of A. A क्या है आपका करंट सिंबल, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट के ऊपर क्या है, ये वाले सारे सिंबल। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अल्फा के अंदर क्या आ गया, A4, A1, A2, A1, A2, A2। क्लियर है आईडी की डेफिनेशन? आईडी क्लियर है? आगे चले बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन डायग्राम। तो रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर भी क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की डेफिनेशन चेंज है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपके पास एक डायग्राम गिवन होगी, जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय ट्रांजिशन डायग्राम, डायग्राम विल बी गिवन टू यू, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्यू नोट जब Q1 की तरफ जा रही है तो वहां पे एक मूव दी है तीन चीजों की फॉर्म में, जबकि हम जब DFA करते थे या NDFA करते थे तो वहां पे हमारे पास सिर्फ इनपुट ही लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें हैं, 0, कैपिटल A और R। यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अल्फा, ये A रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बीटा, और ये R रिप्रेजेंट कर रहा है आपका गामा। तो चलिए इनकी डेफिनेशन समझते हैं। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज योर प्रेजेंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड, ठीक है। अल्फा क्या है आपका करंट सिंबल है जो कि रीड राइट हेड के नीचे है। नेक्स्ट है बीटा, बीटा क्या है, न्यू सिंबल दैट रिप्लेसेस द प्रेजेंट सिंबल। ये ए क्या है, ये ए ने 0 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाना है, मतलब कि यहाँ पे राइटिंग ऑपरेशन होगी, 0 चला जाएगा और ए आ जाएगा। देन वी हैव गामा, गामा यहाँ पे क्या बताता था, मूवमेंट ऑफ हेड लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब क्यू नोट ने 0 को प्रोसेस करना है, उसने राइट की तरफ जाना है, वो नई स्टेट के अंदर आ जाएगा। वो नई स्टेट का नाम क्या है, Q1, और उसने 0 की जगह पे क्या लिख देना है, स्मॉल a। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा? ट्रांजिशन डायग्राम इज क्लियर टू यू? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बिकॉज आगे हमने एक टॉपिक पढ़ना है, डिजाइनिंग ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगी, तभी यू कैन इजीली डिजाइन दैट पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन, अदरवाइज यू कांट डिजाइन ट्यूरिंग मशीन। अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लो मेरे से। नो डाउट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ट्रांजिशन टेबल, रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन टेबल। तो इसके अंदर भी बेटा एक टेबल गिवन होगा आपके पास, लेकिन उस टेबल के अंदर जो आपकी मूव्स होंगी वो डिफाइंड होंगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो आपको बताता है नेक्स्ट सिंबल रिटन इन द करंट सेल। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट सिंबल का मतलब क्या है कि नया सिंबल, अल्फा आपको नए सिंबल के बारे में जानकारी देगा। बीटा यहाँ पे आपको बताएगा मूवमेंट ऑफ हेड लेफ्ट और राइट। बीटा के अंदर आपको क्या गिवन होगा, या तो एल लिखा होगा या आर लिखा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है गामा, गामा आपको बताता है नेक्स्ट स्टेट ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है। तो चलिए टेबल के अंदर जाते हैं, टेबल में देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Q1 से लेकर Q5 आपके पास प्रेजेंट स्टेट्स गिवन है, वेयर Q1 इज एक्टिंग एज अ इनिशियल स्टेट एंड Q5 इज एक्टिंग एज अ फाइनल स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेप सिंबल्स हैं, एक है B, एक है 0 और एक है 1। तीन आपके पास टेप सिंबल्स हैं। Q1 ने जब B को प्रोसेस करा तो वो जा रहा है 1LQ2। इसका मतलब है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 1। 1 क्या है, आपने B को रिप्लेस करके क्या लिखना है, 1। अल्फा इज अ
नेक्स्ट सिंबल रिटर्न इन द करंट सेल। इसका मतलब है बी को रिप्लेस करके आपने क्या लिखना है 1। बीटा आपको क्या बताता है डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट मूव करने के बाद लेफ्ट की तरफ जाना है क्योंकि यहाँ पे एल लिखा हुआ है। एंड आप जो नई स्टेट के अंदर जाओगे वो क्या है आपका गामा, मींस गामा रिप्रेजेंट्स नेक्स्ट स्टेट ऑफ ऑटोमेटा। वो ऑटोमेटा की स्टेट कौन सी है Q2। ठीक है, एक मूव और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे Q2 की 1 के ऊपर मूव, Q2 जो है वो 1 के ऊपर क्या करेगा 1 को 1 के साथ ही रिप्लेस करेगा, डायरेक्शन है लेफ्ट, और यहाँ पे स्टेट क्या है Q2 ही है, स्टेट चेंज नहीं हुई है। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा तीनों रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट हमने डिजाइनिंग के अंदर यूज करना है, और आपको उस डिजाइनिंग के अंदर अल्फा बीटा गामा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्ट्रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है किस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि उस केस के अंदर आपको डायग्राम भी खुद बनानी है, उस केस के अंदर आपको टेबल भी खुद बनाना है, वहां पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन होगा। कोई डाउट नहीं है? So with this your representation is over. इसके बाद एक और पोल है आप लोगों के लिए, तो मैं थर्ड पोल एक्टिवेट करने जा रहा हूं, तो आंसर कीजिए उसको फटाफट, आसान सा पोल है। पोल विजिबल हो गया सबको? तो हरी आप, अभी भी 10 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक।
तो थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ट्यूरिंग मशीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दी अबव है। एक स्टूडेंट ने अभी भी गलत आंसर करा है, तो बेटा जिसने भी गलत आंसर करा है वो ठीक कर लेना। ये तीनों के तीनों मेथड के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है। सेकंड क्वेश्चन था एन आईडी इज अ स्ट्रिंग अल्फा बीटा गामा, हियर बीटा इज द प्रेजेंट स्टेट। तो इसका राइट आंसर है करंट स्टेट। सेकंड आंसर इज राइट वन। तो 8 बच्चों ने इसका भी गलत आंसर किया है। रिजल्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, और ट्यूरिंग मशीन के द्वारा चेक करेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है अपनी, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। ये बेटा विजिबल हो गया आपको? स्क्रीन पे बेटा क्या दिख रहा है? Yes, मैं वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ। अगर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है? हम वहां पे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। मैं वीडियो को सर थोड़ी ब्लर है पिक्चर। अभी क्लियर हो जाएगी। अभी प्ले नहीं ना करी, जब प्ले करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। अब देखिए, बेटा आवाज और वीडियो क्लियर हो गई थी? कंटिन्यू करूं? साउंड नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नो सर। अब देखो आ गई आवाज। Yes sir. It starts from the initial state, that is Q naught, after the processing of entire string X, final state reaches, right? So in a question, a string will be given to you. Number two, a diagram, because we are talking about a transition diagram. So in this case, all the moves have been defined in the form of transition diagram. Next, you will be asked to obtain the sequence, which will let you know about whether the string is accepted or not. So let's proceed to our first example. So here, the statement says that about obtain the, बेटा वो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? डेफिनेशन वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग की, स्ट्रिंग की एक्सेप्टेबिलिटी की, जो हम आज तक करते आए हैं कि जब आप इनिशियल स्टेट से शुरू करोगे, आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ एंटायर स्ट्रिंग you will end up at the final state, so then you can say that the string is accepted. ठीक है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हमारी बात होएगी ट्यूरिंग मशीन की। और ये जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है उसको मैंने ट्रांजिशन डायग्राम के साथ शो करा हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यू करने जा रहा हूं वीडियो को। कंप्यूटेशन सीक्वेंस ऑफ M, here M is a transition diagram. For processing the input string, the string which is given to you is 0011. So this is a diagram which is given to you, right? So what you have to do, you will have to check that whether this string is accepted or not with the help of transition diagram. So according to the definition of
transient diagram, we have the string alpha, beta, gamma, where alpha represents present symbol, beta represents new symbol, and gamma represents direction. So take any move. So here, like this, 0, 0, L. So here, 0 means present symbol. This 0 means new symbol which will replace this 0, and this is the direction. That means you have to move left. So let's start with the string which is given to you. So first of all, you need to add one B at the beginning and one B at the end, right? So what you will have to do, you will always start with Q1 So you need to add one B before the string and one B after the string, and you will start with the initial state. So here the initial state is Q1, right? So next, what you need to check? You need to check that on the processing of 0, where Q1 goes. So Q1 on the processing of 0, it goes to Q2. So you need to write this alpha, beta, gamma over here. So 0, x, r, right? So here the current symbol is 0, and 0 will be replaced with x. So you need to write b x 0 1 1 b, and the direction is right. So what is right of x? That is this 0, and it is going from Q1 to Q2. So here you need to write second state, that is Q2. Next, what you need to check? You need to check for Q2 upon the processing of 0. So Q2 upon the processing of 0, it goes to itself. The move is 0, 0, r. So it means 0 will be replaced with 0. So here you need to write b x 0. 0 will be remain as 0 because the new symbol is 0. The direction of motion is right. So right is 1, 1, 1, b. So your arrow, your read right hand will move towards next 1, and the state will remain same because Q2 upon the processing of 0, it goes to Q2 itself, right? So next you need to check Q2 upon the processing of 1. So Q2 upon the processing of 1, it goes to Q3, and the move is 1, y, l, right? So what you need to write? So Q2 upon the processing of 1, it goes to Q3. It means you get a new state, that is Q3, but this time this one will be replaced with y. So let's write first of all bx 0, because 1 will be replaced with the y. It means this one will be replaced with y 1 b, and the direction of motion is left. So your read right hand will move towards this 0, and you will get the state Q1 Q2. Q2 move is 1 y l. So you get the state that is Q3. I hope you get this point. Next, what you need to check? You need to check Q3 upon the processing of 0. So Q3 upon the processing of 0. बेटा समझ आ रहा है कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है सारी? यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, so that I can repeat it for you. हाँ जी स्टूडेंट्स, अभिजीत, अभिनव, गुरप्रीत, हाँ जी मनवीन, बेटा समझ आ रहा है? कुंदन, यस सर आ रहा है। Yes, sir. समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक कोई? नो सर। नहीं सर। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ. Goes to Q4. The move is 0, 0, L. So B X here 0. This 0 will be replaced with this 0. That is 0 will remain same. That is 0. Y 1 B. Again you need to move towards left. So what is left of 0? That is X. So read right hand will move towards this position, and
the state is Q4. Next, Q4 upon the processing of X. Q4 upon the processing of X, it goes to Q1. And the move is X, R. It means you need to move right. X will remain X because the new symbol is X. So here the move is B, X, 0, Y, 1, B. And read right head will move towards 0 because the direction is right. And now the state is Q1 because Q4 upon the processing of X it goes to Q1. Next you need to check Q1 upon the processing of 0. So Q1 upon the processing of 0 it goes to 0 X R. It means 0 will be replaced with X. So you have B X. This 0 will be replaced with X. So here Q1 upon the processing of 0 it goes to 0xr. It means this 0 will be replaced with this x. That is why I have written b double x. Then we have y 1 b. The direction is right. It means the cursor will point to this y. Now the state is Q2. Next, you need to check for Q2 upon the processing of y. Q2 upon the processing of y. Q2 upon y. Q2 upon y. It goes to y, r. It means this y will be replaced with y. The direction is right and the state will remain same. Here Q2 upon the processing of y goes to Q2, a loop itself. So what do you get? You get b x y 1 b. Right? The direction of motion is right. So your cursor read right head will move towards this point. That is the state will remain same. That is Q2. So next move is Q2 upon the processing of 1. So we need to check this move from the diagram. So Q2 upon the processing of 1, it goes to y 1 y l 1 comma y comma l. It means this 1 will be replaced with y and the direction is left. Means read right head will move towards this y. So it becomes b x y head over here, and this one will be replaced with y. B will remain same and the state will be Q3 because Q2 upon the processing of 1 it goes to Q3. Next move is Q3 upon y. Q3 upon y l and the state is Q3. That is y comma l, the state is Q3. So what do you get? Again you need to move backwards because the direction is left. So you will get b x. So here your read right head state will remain same. That is Q3. And you will get y b. Next you need to check Q3 upon x. Q3 upon x r. So Q3 upon x, the move is x r, x comma r. So it means x will be replaced with x, right? The direction is right and the new state is Q5. So here you need to write b x y b, and you have to move your read right head to this y, and the state is Q5. Next move is Q5 upon y. Q5 upon y is y r. So you need to write y comma r. So next it means y will be replaced with y and the direction is right, but the new state is Q5. So b x y Q5 b. Again the same move will be applicable. Q5 upon y, that is y comma r. So you will get b x y b and the direction is right. Means now Q5 is not the final state and you have completed your entire string. Now you need to add one b. If after the addition of this b
you will end up at the final state, it means the string is accepted. Now we need to check that Q5 upon P. Q5 upon P processing of P, that is P comma B comma R, and the state is a final state, that is Q6. So here you need to write B comma B comma R. So what you need to do, B X X Y Y P, and the read write head will move towards last P, and you will get Q6, and this Q6 is a final state, that is the string is accepted. The string is accepted by this Turing machine with the help of transition diagram. Thank you. Hello students, our next topic is acceptance of a string. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया बेटा कि Yes, ट्रांजिशन डायग्राम के द्वारा हम किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर कोई डाउट है तो अपने अपने क्वेश्चंस पूछिए मेरे से, अगर किसी को कोई डाउट है तो। सर नो डाउट्स? हेलो हेलो, हेलो सर, दोनों साइड बीबी लगाना हमेशा? हाँ जी बेटा, स्टार्टिंग ऐड करना है बी बेसिकली, जो क्योंकि बी हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एंड मार्कर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके जो ब्लैंक सिंबल है वो एज अ एंड मार्कर का काम करते हैं। समझ आ गया? ठीक है सर वो लेफ्ट में भी अगर बी पे आ जाएगा तो लेफ्ट में भी एक बार पी ऐड करेंगे। नहीं, तो जैसे right, वो वाला right, मैं आपको बताता हूँ कुंदन, जब वो लास्ट जो आपने बी ऐड करा है ना, लास्ट वाला, वो इसलिए ऐड करा था क्योंकि Q5 जो था वो बी के अभी हमारी प्रोसेसिंग पेंडिंग थी ना, और उस बी के बाद कुछ नहीं था। तो जब उसने Q5 को प्रोसेस करना था, उसने आगे की तरफ तो जाना ही था, तो आगे जाने के लिए मेरे पास कोई सिंबल नहीं था, इसलिए आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी बी ऐड कर सकते हो। समझ गए? सर वो मूव करते करते सारे स्ट्रिंग को प्रोसेस कर दिया और स्टार्टिंग में ही आके वैसा ही कंडीशन जैसा भी बना था, तो इनिशियल में भी बी ऐड कर सकते। हाँ जी, इनिशियल में भी बी ऐड कर सकते हो जब आपको जरूरत है। जब आपने वो वाला बी ऐड करा और उस बी को ऐड करने पे आप फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाते हो, तो तब आपने वो चीज करनी है। अगर उस बी को ऐड करने के बाद फाइनल स्टेट नहीं आती है तो उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। समझ आ गई बात? ओके सर। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, यस अपनी सर। तरफ से सिर्फ एक ही बी को ऐड करा था और Q5 ने बी को प्रोसेस करा था, और बी को प्रोसेस करने के बाद वो Q6 पे पहुंच गया था, फाइनल पे पहुंच गया था। सिर्फ एक बी ऐड करना था। यस। हाँ हाँ जी, एनी अदर डाउट्स? ये आपकी जो मैंने अभी एग्जांपल की वीडियो दिखाई अपनी, वो एग्जांपल थी बेटा कि एक ट्यूरिंग मशीन को प्रोसेसिंग चेक करनी है कि वेदर उस ट्यूरिंग मशीन के द्वारा कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है कि नहीं है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मूव्स आपकी अल्फा बीटा गामा जो था वो ट्रांजिशन डायग्राम के अकॉर्डिंग डिफाइंड थी। सिमिलरली हमारे पास ये सेम प्रोसेसिंग की एग्जांपल है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल। तो जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपके पास एक डायग्राम गिवन थी, अब जो एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूं उसके अंदर टेबल विल बी गिवन टू यू। ठीक है, तो चलिए मैं शो करने जा रहा हूं, इसको भी देखना बड़े ध्यान से।
बेटा ये वीडियो शो होनी शुरू हो गई आपको? Yes, sir. साउंड प्ले करने जा रहा हूँ. Hello students, our next topic is acceptance of a string by a Turing machine using transient table. So in last lecture we have discussed about acceptability using transient diagram, right? So today's topic is with the help of transient table. So first example, consider the Turing machine M described by the transient table given by the following table. Describe the processing of 011, 0011, 001 using ID. It means you have to use this symbol. So which of the above strings are accepted by M? Means what are the various strings that has been accepted by this transient table? So right, if you remember the definition of transient table, we have a string alpha, beta, gamma, where alpha is a new symbol, beta is a direction, left or right, and gamma is a new state. So let's take an example here. X is a new symbol, old symbol is 0. So 0 will be replaced with this alpha. The direction of motion is right, and the new state is Q2. So let's start with first example, right? You need to check the acceptability of 011. So let's get started. You will have to start from the initial state, and the initial state is Q1. So Q1 upon the processing of 011. So because you have to use ID, so you need to represent with this tilted T. So let's check the move. So the first move is Q1 upon 0. So Q1 upon 0 it goes to XR Q2. So you need to write the move XR Q2. So this is the move. It means this 0 will be replaced by this X. The direction is right. So the right of X is this, and the new state is Q2. So you need to write X Q211. I hope you understand. Let's see again what you have to do. Q1 upon the processing of 0. The move is alpha, beta, gamma. The new symbol is X. Means 0 will be replaced with X. So here you will get X, right? The direction of motion is right. So you need to move your state, right? So it will be Q2, and the direction is right. Next move, what you have to check? Again, you need to check Q2 upon the processing of 1. Q2 upon the processing of 1. It goes to YLQ3. YLQ3. So this 1 will be replaced with Y. So you will get X, Y, and last one will remain as such. And now the direction is left. So left of X, left of Q2 is X. You need to put your state before X. So the move will be Q3 XY1, right? Next, what you need to check? You need to check for Q3 upon X. Q3 upon X. The move is X R Q5. So the X will be replaced with X because the new variable is also X. So X will remain X. The direction of motion is right. So you need to put your state after this X. That is Q5 and Y1 as such. Next move is Q5 upon the processing of Y. So Q5 upon the processing of Y, the move is YRQ5. So it means Y will remain same. That is old symbol is Y and new will be Y. And the direction of motion is right, and the new state will be Q5. So you will get X, Y, Q5, 1. Next you need to check for Q5 upon 1. Q5 upon 1. Here is the move. Q5 upon the processing of 1. So note defined as delta Q5, 1 is not defined. Therefore, the string 011 is not accepted by this Turing machine. So thank you. This is about first example. So next. हाँ जी बेटा, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है सबको? Yes, sir. मूवमेंट कैसे कर रहा था वो क्लियर हो गई फर्स्ट एग्जांपल? Yes, sir.
ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. Input string is 0011. So again you need to start with the initial state. 1 minute. So next input string is 0011. So again you need to start. Next input is 001. So again hello students, our next topic. Thank you. This is about first example. So next input string is 0011. So again you need to So next input string is 0011. So again you need to start with the initial state. After that you need to write your string. So Q1 upon the processing of 0, it goes to XR Q2. It means the 0 will be replaced with X. So the direction of motion is right. That is why I have written my state after this X, because the direction is right and the new state is Q2. Next you need to check for Q2 upon the processing of 0. So Q2 upon 0, it means 0 will be replaced with this 0. The direction is right and the state is Q2. So you will get X0 Q2 1 1. Next we have Q2 upon 1. The move is YLQ3. It means 1 will be replaced with Y. The direction is left. So the left of Q2 is 0. So you need to put your state after this X, right? And the state is Q3. So after that you need to go for Q3 upon 0. Q3 upon 0, you have 0 LQ4. So it means 0 will be replaced with 0. The direction is left. So left of Q3 is X. So you will get Q4 X0 Y1. Next, you need to go for Q4 X. So Q4 X. So you have to move XR Q1. It means X will be replaced with X. The direction of motion is right and the state will be Q1. So you will get X Q1 0 Y1. Next is Q1 upon 0. So Q1 upon 0, that is X R Q2. So this 0 will be replaced with X. The direction of motion is right. So you will get Q2 Y1. Next we have Q2 upon Y. Q2 upon Y is Y R Q2. It means Y will remain same. That is alpha is Y, new value is Y. So you will get X Y Q2 1. Next is Q2 upon 1. Q2 upon 1. The move is Y L Q3. It means 1 will be replaced with this Y and the direction of motion is L and the new state is Q3. So you need to write X Q3 Y Y. This 1 will be replaced with this Y. That is the reason I have written this Y. Then the direction is left. So the left of Q2 is this Y. So you need to put your state after these two X's. So the new state is Q3. So next you need to check for Q3 upon Y. Q3 upon Y. That is Y L Q3. Right? So Y will remain same and the direction of motion is left and the state is Q3. So you will get X Q3 X Y Y. Next is Q3X. Q3X. That is X R Q5.
X will remain X, X, X. Direction is right. And the new state is Q5, Y, Y. Q5 upon Y. So Q5 upon Y, that is Y R Q5. It means Y will be Y, X, X. The direction is right and the state is Q5. So Y, Q5, Y. Again, the same move will be processed, that is Q5 upon Y, that is Y R Q5. So you will get X, X, Y, Y, Q5. So remember students, your entire string has been processed, but Q5 is not the final state. Now you need to add one blank symbol. If after the addition of this blank symbol, you will get final state, it means the string is accepted. If after the addition of this B, you will not reach at final state, the string will be rejected straight away. So I have added this B. Now I need to check for Q5 upon the processing of B. So Q5 upon the processing of B, the move is B R Q6, right? B R Q6. So you need to process it X, X, Y, Y. Then you have this B and Q6. So this is your final state, Q6. Therefore, the string 0011 is accepted. हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल क्लियर हो गई। पहली वाली एग्जांपल के अंदर आपकी स्ट्रिंग जो थी वो रिजेक्ट करी थी हमने, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन इस केस के अंदर आपकी Yes, जो sir. स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है। एक्सेप्ट हुआ। समझ आ गया कुंदन? Yes, sir. आगे. मनवीन, Yes, sir. महिमा, Yes, sir. हाँ जी मनीष, यस सर। धीरज, धीरज शर्मा, धीरज लगता है लेक्चर में नहीं है। हाँ जी भारती, मनीष कुमार, यस सर। चलिए एक और एग्जांपल है इसी के लिए, जो थर्ड पार्ट है इसका वो देख लीजिए। Next input is 001. So again you need to start with your initial state. You need to check for Q1 upon 0. So the move is X R Q2. So it means 0 will be replaced with X. The direction of motion is right. So new state is Q2 0 1. Next Q2 upon 0. The move is 0 R Q2. 0 R Q2. Right. So 0 will be replaced with 0. That is the direction of motion is right. So X 0 Q2 1. Next Q2 upon 1. Q2 upon 1. That is Y L Q3. Y L Q3. It means 1 will be replaced with Y and the direction of motion is left and the state is Q3. So you will get X Q3 0 Y. 1 will be replaced with Y. The direction is left. That is why I have written my state after this X and the state is Q3. Next Q3 upon 0. Q3 upon 0. That is 0 L Q4. So 0 will be remain same, that is 0. The direction of motion is L, the state is Q4. So you will get Q4 X 0 Y. Next you have Q4 upon X, Q4 upon X. That is X R Q1. X will remain same, the direction is right. So right of X is this position. So then you need to write your state, that is Q1, and next symbol 0 Y. Next you have Q1 upon 0. So Q1 upon 0, that is X R Q2. X R Q2. 0 will be replaced with X, so you will get X, X, new state, that is Q2, and then Y. Next is Q2 upon Y. Q2 upon Y, that is Y R
q2, right? Y r q2, y will be replaced with y, direction is right, and new state is q2. So you need to write x y q2. Again you have to add b. So q2 upon b, if you will get final state, it means the string is accepted. So you need to go for q2 upon b. As the q2 upon b, the move is not defined. So you need to write delta q2 comma b is not defined. Therefore, machine faults. It means your Turing machine faults, and the string that is 001 is not accepted by M. So thank you, students. This is about acceptability of a string by Turing machine using transition table. हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये जो Yes, दो sir. वीडियोस आपको मैंने शेयर करी हैं, ये थी आपकी Yes, sir. स्ट्रिंग की एक्सेप्टेबिलिटी बाय ट्रांजिशन टेबल एंड बाय ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट को हमने आगे यूज करना है अपनी डिजाइनिंग के अंदर। क्लियर है? तो चलिए उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्चुअल जो एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, वो खत्म नहीं होगा टॉपिक। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आज के लेक्चर में आपको करवा देता हूँ। जस्ट वेट। तो ये स्लाइड हो गई शो? Yes, sir. Yes, sir. स्लाइड विजिबल है सबको? Yes, यस sir. सर। तो है डिजाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये ट्यूरिंग मशीन का ही पार्ट है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हर बार फाइनल एग्जाम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग अ ट्यूरिंग मशीन। वो गाइडलाइंस कौन कौन सी है? फर्स्ट गाइडलाइन कहती है द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इन स्कैनिंग अ सिंबल बाय रीड राइट हेड इज टू नो व्हाट टू डू इन द फ्यूचर। कि जब भी आपको रीड राइट हेड से कोई सिंबल को स्कैन करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपको क्या करना है। ठीक है, द मशीन मस्ट रिमेंबर द पास्ट सिंबल स्कैन। आपको जो पुराने सिंबल्स आप लोगों ने स्कैन करे हैं, वेदर वो 0 है, 1 है, बी है, वो सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, द ट्यूरिंग मशीन कैन रिमेंबर दिस बाय गोइंग टू द नेक्स्ट यूनिक स्टेट। जो ट्यूरिंग मशीन है वो ये याद रखती है अगली स्टेट पे जब वो जाती है तब। ठीक है, सेकंड वो कहता है, सेकंड गाइडलाइन क्या है कि आपने कोशिश करना है कि जब भी ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करना है, यू हैव टू टेक मिनिमम स्टेट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेट्स मस्ट बी मिनिमाइज्ड। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आपकी वो मशीन 2 स्टेट से बन रही है, तो आपने तीसरी स्टेट को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द स्टेट्स ओनली। आपने स्टेट्स कब चेंज करनी है? नंबर 1, व्हेन देयर इज चेंज इन द रिटर्न सिंबल। अगर आपके पास पहले ए है और ए आपका बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, या आपके पास पहले 0 था, 0 आपका 1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अगर पहले आपके पास 2 था तो 2 आपका चेंज होके हो रहा है बी, तब आपकी स्टेट चेंज होगी। समझ आई बात? पहली कंडीशन क्या है कि आपने मिनिमम स्टेट्स लेनी है, और मिनिमम स्टेट्स आप लोग कैसे ले सकते हो कि आपने कोशिश करना है आपकी स्टेट तब ही चेंज होगी जब आपका सिंबल चेंज हो रहा है। ठीक है,
जब आपका सिंबल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि पहले भी ए था बाद में भी ए है, पहले भी 0 था बाद में भी 0 है, पहले भी बी था बाद में भी बी है, तब बेटा आपकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। अगर पहले क्यू नोट है तो बाद में भी आप लोग उसको क्यू नोट ही लिखोगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस रूल? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वो बोलता है कि व्हेन देयर इज चेंज इन द मूवमेंट ऑफ रीड स्लैश राइट हेड, जब आपका रीड राइट हेड जो है वो चेंज हो रहा है तब बेटा आपने स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आपकी मूव के अंदर पहले एल लिखा था और आप राइट में जा रहे हो, या आप राइट में थे और आप एल में जा रहे हो, तब आपकी जोन सी भी स्टेट होगी, अगर वो क्यू नोट है तो वो क्यू वन के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर Q3 है तो Q4 हो जाएगी, अगर Q4 है तो Q5 हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आपका जो मूवमेंट है वो हो रही है। ठीक है, दूसरी बात वो बोल रहा है कि इन केस ऑफ L गोज टू L, जब आपकी पहले भी L थी बाद में भी L है, या पहले R था बाद में भी R है, तो आपकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? जब आप किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाते हो, तो ये कंडीशन मैंने अपनी तरफ से डिजाइन करी है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी प्रॉब्लम्स के अंदर, जब आप लोग किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाओगे, तो जितनी देर तक आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करोगे आप वहां से नहीं निकल सकते हो। इस तीनों गाइडलाइंस में कोई डाउट है तो बेटा क्लियर कर लो। आपकी स्टेट कब चेंज होगी? नंबर 1 जब आपका सिंबल चेंज होगा, नंबर 2 जब आपका डायरेक्शन चेंज होगी, और नंबर 3 जब आप किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाओगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। जब भी आपने, सबसे पहली बात की जो आप ट्रांजिशन डायग्राम है, जो आप ट्रांजिशन डायग्राम की डिजाइनिंग करनी है, वो आप बेटा दो तरीकों से कर सकते हो। एक कर सकते हो ट्रांजिशन टेबल के थ्रू, एक कर सकते हो ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हर एक डिजाइनिंग के अंदर यूज करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? राइट डाउन दी स्टेप्स। पहले आप लोगों ने स्टेप्स खुद अज्यूम करने हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मतलब कि उस स्टेप्स के अंदर आपने प्री अज्यूम करना है कि ये वाली मेरी इनिशियल स्टेट होगी, ये वाली मेरी फाइनल स्टेट होगी, और मैं मिनिमम कितनी स्टेट्स लेकर चलूं सो दैट कि मेरा जो डिजाइनिंग हो पाए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? प्रोसेसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी है आप लोगों ने, उसके अंदर क्या आएगा? एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है हमने। नेक्स्ट वी हैव, you have to draw either a transition diagram or a transition table। ठीक है, ये तीन स्टेप्स जो हैं जो आपने हर एक डिजाइनिंग के अंदर करने ही करने हैं। समझ आ गया? सबसे पहले आपको लिखने हैं स्टेप्स। ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको स्टेप्स लिखने हैं। दूसरी बात है आपको स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी है, और तीसरी बात क्या है? आपको ट्रांजिशन या डायग्राम बनानी है या ट्रांजिशन टेबल बनाना है। क्लियर हो गया? यस सर। एग्जाम्पल Yes, sir. करें या नेक्स्ट लेक्चर में करनी है? बताओ मेरे को। हाँ जी बेटा, मार्क्स बता दो। करें स्टार्ट एग्जाम्पल के साथ या अगले में करनी है? So next lecture. चलो ठीक है। काइंडली ये जो मैंने आज आपको करवाया है, मैं इसकी ना पीपीटी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और अपनी बुक को रेफर करके इनको प्लीज रीड आउट कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बेटा? सर वो वीडियो मिलेगी? Yes, sir. हाँ बिल्कुल Yes, बेटा, sir. बिल्कुल वीडियोस आपको मिलेंगी। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ दोनों के, जो तीनों वीडियोस है ना। ऑल दो जो आपके कॉलेज का चैनल बना हुआ है ना, उसके अंदर भी मैंने वो वाली वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। तो आप लोग वहां पे सर्च मारोगे एक्सेप्टेबिलिटी बाय ट्यूरिंग मशीन बाय पवित्र सिंह, वो वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी। फिर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है,
So thank you very much for today's lecture. हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर मार्क्स भी बता दो एमएससी के। मार्क्स बताऊं, एक मिनट। अब मेरे को बेटा इंडिविजुअल मैसेज करो, मैं आपको मैसेज बता दूंगा, ठीक है? जिसको मार्क्स पूछने हैं मेरे को इंडिविजुअल मैसेज कीजिए, अभी लेक्चर के बाद मैं आपको आपके मार्क्स बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क को यूज करिए। और जब भी आप लोगों ने बाहर जाना है मास्क पहन कर जाइए और डू कैरी वन सैनिटाइजर अलोंग विद यू। ओके, यस सर। और गुड Okay. लक, Yes, sir. बाय बाय। बाय बाय सर।